Hello, students. Good morning. This video is for those who want to know a very common errors we generally do when we write something and when we speak something in English. So here I would start and I'm going to discuss 10 sentences only, but that will be useful to you. First sentence is that's a very common. I would start from sentence, right? So that's a if we talk about grammar, so that's a sentence is the first part. Sentence, right? And what is important in sentence? That's a types of sentences first of all. So that's a uh, basic sentences. Four sentences are there which are very important. This is first is simple or affirmative, simple or affirmative sentence, right? Affirmative. And simple and affirmative sentence ends with dot, right? So this sentence ends with dot, so this will be the first sentence. Second is negative sentence, where negation, or sentence where neither nor not, right, such words are used. This is a negative sentence, ends with dot. Then interrogative sentence, right? Interrogative sentence. An interrogative sentence ends with question mark, and exclamatory sentences ends with exclamatory marks. This is exclamatory sentence, right? So there are four varieties of sentences. So what is important that you should always keep in mind that's a common structure of the sentence is subject plus verb plus object. We in English language this order is followed, right? So question is that what is subject? So subject is noun or pronoun, right? Verb is there are two types of verb, sometimes helping verb or otherwise main verb. And noun is also noun or pronoun. So what is the difference between this noun or this noun? So this is the noun and pronoun which does action, right, for this noun or pronoun. Important. Imagine that there is a you just imagine that's a uh, yes, there is one person, right, and there is another person, right? So that's a this person will do one action, right? So this person will do one action to this person. I'm making it again. Suppose here is a person, right? And he is also person. So why this person is doer and this noun is doer, right? And this noun is receiver. So when this noun will work for this, right? So that's a work for B, and this is A, and that work is called, that is this work is called verb, right? So that is called subject verb object. Subject, right? Then this is verb and this is object. So why this this side is called subject? Because this is the doer and this is the receiver, and that is why this noun or pronoun is called doer, and this noun or pronoun is called object. Doer is called subject, doer is subject, and this is object. दैट इज़ एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टेल यू, मुझे आपको यही समझाना था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो फिर इस सब्जेक्ट को इस नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डूअर है, ये काम करता है, और ये नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के दूसरे तरफ रहता
रहता है वो रिसीवर होता है, इसीलिए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फर्स्ट थिंग, तो इस पे कॉमन सेंटेंसेस जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि कभी कभी आप देखना ऐसा रहता है, सेंटेंस है मी एंड माय फ्रेंड, मी एंड माय फ्रेंड गो टू कॉलेज टुगेदर, कॉलेज टुगेदर। ओके, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें एरर है मी में, और एरर किस में है, इसमें एरर है इसमें मी में, राइट? वाई? आई टेल यू, दिस शुड नॉट बी मी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्क, and what's the work? Go. So before go, it is not I, it is not me, it is I. So sentence will be like this. I have to clean this sentence, then I can tell you in next. So sentence is my friend and I go to college together, together. Why? Because reason is together. This is the correct sentence. Reason is that first priority should be given to the person first. You should keep in mind that ours should be given the first last priority. अगर सेंटेंस में कोई 2 या 3 लोग हैं तो खुद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी में, पहले फ्रेंड फिर आप। एक बात, हाँ, खुद को कब हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, अगर सेंटेंस या कभी आप दिखा रहे हो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आपने कहा यस आई एंड माय फ्रेंड, राइट, will have to go to court because we were involved, right? So तब उस केस में आप कहोगे कि 2 लोग इन्वॉल्व, आई एंड माई फ्रेंड वॉज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तब कन्फेशन के लिए खुद को प्रायोरिटी। अदरवाइज आर प्रायोरिटी शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। मान लीजिए सेंटेंस में 3 लोग हैं, एक पर्सन है जिससे आप डायरेक्ट बात करो, यू, दूसरा पर्सन है मिस्टर राम और आई, तो उसमें भी आपकी प्लेस इज लास्ट, है ना? 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, तो 3 पर्सन में से सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन में प्रॉब्लम आती है। तो पर्सनल प्रोनाउन याद रखिए कि पर्सनल प्रोनाउन में आपको कौन कौन से मैं रिकॉल करवा देती हूँ। जो सब्जेक्ट में या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको क्लीन करके बताती हूँ आपको कैसे। देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कौन कौन से इसमें वो होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो इसमें होता है आई और वी, है ना? आई और वी और यू, और यू तो कभी चेंज ही नहीं होता। फिर तीसरा होता है ही या शी या इट, इनमें से कोई ऑप्शन, और प्लूरल होता है दे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा याद रखना है ये दे, है ना? तो ये याद रखिए कि ये वाला जो है आई यू, है ना, ये सिंगुलर होते हैं, इनको, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। हालांकि इसमें से आई हमेशा प्लूरल को फॉलो करता है, पर वो सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? आई है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है? वी है। सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, सेकंड पर्सन सिंगुलर आई होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल भी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, सेकंड भी यू होता है। थर्ड पर्सन में आपको सोचना पड़ता है क्योंकि वो आपके बीच में नहीं है, तो वो है या तो ही है या शी है या इट है, और उसका प्लूरल होता है दे, है ना? मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सारे, इनको सबको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह में हमेशा यही, इन्हीं में से
कोई एक प्रोनाउन यूज़ होता है, चाहो तो काउंट कर लो 1 2 3, यू को एक ही काउंट करो, 4 5 6 और 7, है ना। मैं इसको अलग से लिख के बता रही हूँ आपको कौन कौन से आए, है ना। फिर वी, यू, ओके, ही, शी, इट, है ना, इनमें से एक, और दे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हैं जिनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह में आएंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इसके बाद वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह में जाते हैं ये प्रोनाउन, तो इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, आई हो जाता है मी, वी हो जाता है अस, यू तो मैंने बताया कभी चेंज ही नहीं होता। फिर ही हो जाता है हिम, शी हो जाता है हर, इट भी कॉमन रहता है, इट चेंज नहीं होता, और दे हो जाता है देम। ये कहाँ होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट में मैं दिखाती हूँ। ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया अभी आपको, आई टोल्ड यू दैट इन दिस प्लेस यहाँ क्या रहेगा, आई या वी या यू, है ना, या ही, शी, इट और दे। ये हमेशा कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। पर इधर पर याद रखिए कि इधर पे क्या रहेगा, इधर पे ये जो आए है ये हो जाता है मी, वी हो जाता है अस, यू तो चेंज ही नहीं होता, यू तो यू ही रहता है, लेकिन ही हो जाता है हिम, शी हो जाता है हर, और इट भी कॉमन रहता है, और ये जो दे है ये दैम हो जाता है। इसीलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा वर्ब के बाद होते हैं या ऑब्जेक्ट। ये बात आप अच्छे से समझना, फिर मैं आपको आगे एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज ये है कि मैंने अभी अभी जैसे एक एग्जांपल दिया कि आए नहीं होगा शुरू में, मी कभी नहीं होगा, शुरू में आए होगा। अगर आप कभी कभी बोलते हो कि मी एंड माय मदर, राइट, मी एंड मिस्टर शर्मा, राइट, मिस्टर शर्मा, तो यहाँ याद रखो कि मी एंड मिस्टर शर्मा विल गो टू द मूवी, है ना, ये सेंटेंस है। तो यहाँ मी नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन क्या है, ये आई हो जाएगा, और इसको बाद में रखना मिस्टर शर्मा का, पहले मिस्टर शर्मा, खुद को हमेशा आखिरी। तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा इसका करेक्शन कि मिस्टर शर्मा एंड आई विल गो टू मूवी टुडे, विल गो टू मूवी टुडे, इस तरह से होता है। तो ये एक करेक्शन है। दूसरा करेक्शन है, याद रखिए कि कभी भी कंफ्यूजन मी में ही होता है, बाकी तो आप कर लेते हो, है ना। एक कंफ्यूजन होता है कि फीमेल के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं प्रोनाउन में, शी और हर, लेकिन मेल के लिए क्या होता है, ही होता है, हिम होता है, और हिज होता है। तो याद रखिए कि ये जो हिज है, ये इसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी और ही है, वैसे ही हर और हिम है। हिज अलग बात है। हिज क्या है, हिज यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है वो भी बता देती हूँ। हिज यूज़ जैसे कि कैसे होता है, एक और प्रोनाउन होता है जिसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ना, पजेसिव प्रोनाउन, फिर से लिख देती हूँ, पजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, वो होते हैं माय या माइन,
माइन, अवर या अवर्स। योर तो चेंज ही नहीं होता, योर का योर्स हो जाता है। हाँ, योर का योर्स। और फिर होता है हिज, जो अभी पूछ बता रही थी मैं, हिज, है ना। और यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हर या हर्स, है ना। और इट्स होता है, इट्स, इसमें भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। योर्स में, इट्स में, आर्स में, कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। और एक और होता है देयर्स, देयर, या होता है देयर्स, देयर्स, THEIRS। अब आप इसमें एक बात नोट करना कि इसमें सब में कहीं पर भी एस यूज़, अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं हुआ है। ये नहीं करना है, इसमें कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता। इट्स में, इसमें, इसमें, ये सारे एक ही फैमिली के प्रोनाउन हैं जिनको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कभी हम माय कहते हैं, कभी माइन कहते हैं, कभी आर्स, आर कहते हैं, कभी आर्स कहते हैं, कभी योर कहते हैं, कभी योर्स। और हिज, है ना, हिज में कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और हर बोलते हैं या हर्स बोलते हैं, देयर बोलते हैं या देयर्स बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब दो मिस्टेक के बाद मैं ये वीडियो अभी ऑफ करूँगी। दो चीज़ें बहुत यार इसमें इम्पॉर्टेंट है। हम लेटर लिखते हैं तो हम लेटर लिखते हैं योर्स, है ना। क्या लेटर लिखते हैं? योर्स सिंसियरली, सिंसियरली। तो हम कभी कभी एरर हो जाती है जब हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा कभी भी नहीं लगेगा। ये वही वाला योर्स है जो अभी हमने पजेसिव प्रोनाउन डिस्कस किया। तो ये करेक्शन, ये गलत है। इसमें करेक्शन क्या है? ये विदाउट अपोस्ट्रोफी होगा, मतलब ये करेक्ट फॉर्म है, विदाउट अपोस्ट्रोफी, योर्स। क्योंकि वैसे भी योर्स का ये जो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो शॉर्ट फॉर्म के लिए लगाते हैं। तो योर इज़, योर आर कुछ होता ही नहीं है। तो याद रखें, ये योर्स जो है वो विदाउट अपोस्ट्रोफी है। तो वेन एवर वी राइट योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, राइट, सो देन वी शुड राइट योर्स विदाउट अपोस्ट्रोफी। दिस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ योर्स, है ना। नंबर टू जो कॉमन एरर है, दैट इज कंफ्यूजन, इज इट्स एंड इट्स। तो यहाँ याद रखिए, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, है ना। एंड दिस इज सेम जो योर्स वाला पजेसिव प्रोनाउन है, ये वही है। तो कैसे यूज़ करना है इसको, देखो दोनों का यूज़ बताती हूँ। अगर आपने कहा कि इट्स टू मच, है ना, तो इट्स टू मच, इट इज़ टू मच। आपको गुस्सा आ रहा है, कोई बात हो रही है, तो आपने कहा इट इज़ टू मच, है ना। तो कौन सा वाला? ये वाला, जिसको आपने शॉर्ट में लिख दिया इट्स टू मच। लेकिन अगर आपको कहा कि इंडिया, अभी मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो आपने लिखा कि इंडिया, इंडिया हैज़, हैज़ क्लियर्ड, क्लियर्ड इट्स इंटेंशन, इट्स इंटेंशन, इंटेंशन। तो यहाँ पे कौन सा वाला इट्स? ये वाला। कौन सा? विदाउट अपोस्ट्रोफी, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ इट्स इंटेंशन। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने कहा इट्स, इट्स 5, not my concern, it's not my concern, right, it is not my concern, but that university has, university has declared, declared its norms। तो कौन सा वाला? विदाउट अपोस्ट्रोफी। लास्ट एग्जाम्पल,
बच्चों के लिए भी इट्स होता है, छोटे बच्चे जो टॉडलर होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो उसमें आएगा द बेबी, द बेबी हैज़ फॉलन इट्स फूड, इट्स फूड, है ना, बच्चे से उसका खाना गिर गया है। तो यहाँ पे ये वाला इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब है उसका। तो ये लास्ट में मैं वाइंड अप करने के पहले बता दूं कि ये है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस इट्स का मतलब दो, इंग्लिश में दो वर्ड्स ऐसे हैं जो, जिनको एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एम्प्टी सब्जेक्ट, एम्प्टी सब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं एंटी सब्जेक्ट? क्योंकि कौन कौन से हैं वो है इट और देयर, है ना। तो कभी भी हम इनसे सेंटेंस बताते इट इज़ 4 o'clock, तो उसमें इट का कोई मतलब नहीं होता, वो सब्जेक्ट नहीं है वहाँ, उसको फुलफिल करने के लिए हम लिखते हैं कि इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, है ना। तो यहाँ पे इस इट का कोई मतलब नहीं है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, तो इस देयर का उस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये वो इट है ना। तो ये सब्जेक्टिव वाला इट है, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। इट इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, मतलब आपने कहा कि ये आपकी ड्यूटी है ना। लेकिन अगर आपने कहा कि दे, कोई कंपनी है मान लो, आपने कहा कि नाइकी, नाइकी हैज़, नाइकी हैज़ लॉन्च्ड, लॉन्च इट्स प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट। तो इसमें अंतर ये समझना है आपको कि ये जो है, ये इट्स, ये सब्जेक्ट है, और ये इट्स का मतलब है उसका, उसका, है ना। तो इसीलिए ये पॉजेसिव है। तो ये मैंने अभी बिगनिंग की है, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी छोटे छोटे, जहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि